Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello, we meet once again, and this will be short and simple lecture as a practice lecture for the past few lectures, that the concept of funds क्या है, फंड्स को हमको किस तरह इस्तेमाल करना है, फंड्स में क्या ऐड होता है और फंड में क्या माइनस होता है. इन द पास्ट लेक्चर्स वी हैव अंडरस्टूड कि लाइब्रेरी फंड, कंप्यूटर फंड, बिल्डिंग फंड, डोनेशन फंड क्या होता है और उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है. वेरी क्विकली, कोई भी फंड आए, लाइबिलिटी साइड पे आपको लिखना है, एंड बिकॉज द पर्पस ऑफ दैट फंड कि लाइब्रेरी फंड, लाइब्रेरी हमको क्रिएट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, कंप्यूटर फंड, कंप्यूटर्स हमको परचेज करने हैं. यू डू नॉट हैव टू डू इट इमीडिएटली. द प्लानिंग इज़ फॉर द नेक्स्ट 1 year 2 years. तब तक वो पैसे का क्या करें, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसके ऊपर थोड़ी कमाई हो जाएगी. हाँ, तो वो कमाई जो है वो आपको फंड में प्लस करना है, और अगर कोई खर्चा होता है तो वो फंड से आप माइनस कर लीजिए. ऑन रेयर ओकेशंस ऐसा भी होता है कि वो फंड का जो आंसर है वो नेगेटिव आता है, तो आपको क्या करना है, वेरी सिंपल, वो जो नेगेटिव आंसर है वो एज एन एक्सपेंस, ओनली द नेगेटिव आंसर, ओके, बिकॉज यू कैन नॉट राइट अ नेगेटिव आंसर हियर. यू हैव टू ट्रांसफर दैट नेगेटिव आंसर to the income and expenditure account on the debit side, something like this. Let's see in today's sum, which has multiple sections A, B and C. Do we get any fund जहाँ पे negative answer आता है? आज आपका जो sum है वो इस तरह है. And if you are confused, सर हमारे टेक्स्ट बुक में ये कहाँ पर है, तो लेक्चर का टाइटल देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, पूरी जानकारी हमेशा अवेलेबल रहती है. How will you deal with the following items while preparing for the Bombay Women Cricket Club? Well, Bombay Women Cricket Club की मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, but I can definitely say that the Indian women cricket team is performing extremely well. Hats off to them for all the players and for all the individual performances also. आगे, its income and expenditure account for the year ended 31st March 2017. अभी 2017 अगर year ended है तो start 16 होगा, 16, 17, and next year will be 17, 18. Point A, when you read, don't look at point B, don't look at point C, okay? मतलब क्या है देख के, क्योंकि वो point अलग है, A से connected नहीं है, okay? Let's see. Donation received the year for the construction of a permanent pavilion, because we are talking about a cricket club. Obviously cricket खेला जाएगा, cricket ground पे खेला जाएगा, ग्राउंड होगा तो पीपल विल कम टू वॉच. वेल, इन अ नॉन कोविड एनवायरनमेंट
there will be pavilions, there will be sitting area, etc, etc, etc. So there will be a construction of a new pavilion. Okay, so jaise there is a Motera stadium in Ahmedabad, or Gujarat has the biggest seating capacity cricket stadium, and one end is called as the Adani end, the other end is called as the Ambani end. नाउ ये अडानी एंड क्यों है, अंबानी एंड क्यों है, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए और तब जाके वो पेविलियन वहाँ पे, वो सीटिंग अरेंजमेंट वहाँ पे क्रिएट हो पाया है. फाइन. हाँ, सो समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे डोनेशन 12,25,000 का, 12,25,000 का कलेक्ट हुआ है. वेयर डू यू राइट इट? सी इन द बैलेंस शीट ऑन द लाइबिलिटी साइड. दिस इज केस ए. तो BNC की मैं बात अभी नहीं कर रहा हूँ. ये डोनेशन आप लाइबिलिटी में लिख लीजिए, 12,25,000. क्या कोई कमाई हुई इस फंड में? क्या कोई खर्चा हुआ? कमाई हुई तो प्लस, खर्चा हुआ तो माइनस. नेक्स्ट लाइन पढ़ लो. एक्सपेंडिचर इनकर्ड, खर्चा. यू विल स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ना, तो खर्चा तो हो गया. अप टू 31st March ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया. 10,80,000 खर्चा हो चुका है, तो माइनस कर लो, क्योंकि 12,25,000 है, उतना आपके जेब में उतना पैसा है, माइनस कर लिया. ओके. उसके बाद क्या? उसके बाद लेट्स सी क्वेश्चन ने क्या बोला है. इट सेज द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड मतलब भविष्य में, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेविलियन 25 lakhs. इसको क्या करूं मैं, प्लस के माइनस? कुछ नहीं, बिकॉज व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिमेटेड? वो बस मैं मेरे दिमाग में सोचा हूं. I'm only thinking that when the total thing will be constructed, 25 lakhs का खर्चा होगा. अभी तो उतने पैसे हमारे पास है भी नहीं, हमारे पास बस 12,25,000 है. तो जो एस्टिमेटेड है फ्यूचर टेंस का, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है. तो वेरी सिंपल, यू हैड 12,25,000, you spent 10,80,000, so what is remaining? 1,45,000. ओके, इतना काम आगे जाके हो सकता है. दिस इज केस ए, पॉइंट ए. तो क्वाइट सिंपल, वो खत्म हो गया. पॉइंट बी, टूर्नामेंट फंड, फर्स्ट लाइन. बैलेंस ऑन फर्स्ट, सो फॉर क्रिकेट टूर्नामेंट, बैडमिंटन टूर्नामेंट, कैरम टूर्नामेंट, कुछ तो टूर्नामेंट, वेल क्रिकेट का क्लब है तो क्रिकेट टूर्नामेंट होगा. हाँ, कितना था 1 अप्रैल को? 10,700. ये मेरे सिर के ऊपर दिया है. फिर सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. व्हाट डू यू मीन बाय सब्सक्रिप्शन? वेल, इफ इट्स अ टूर्नामेंट देयर आर गोइंग टू बी मेनी टीम्स. अगर मुंबई के एक शहर में टूर्नामेंट है, मुंबई के अंदर ही अलग अलग जगह से, सांता क्रूज इज अ प्लेस, वकोला इज अ प्लेस, कुर्ला इज अ प्लेस, कांदिवली इज अ प्लेस, बोरीवली इज अ प्लेस. ओके, अगर आप मुंबई के नहीं हो तो मे बी आपको ये नाम अजीब लगे, बट येस, आपके जगह पर भी आप सोच सकते हो. सो इफ देयर इज अ टूर्नामेंट, देयर विल बी मेनी टीम्स दैट कम, एंड पार्टिसिपेशन का कुछ तो पैसा लेंगे ना भाई. अच्छा भाई, बैट, बॉल, पैड, the arrangement of the match, the lighting, the sound, the commentary, तो कुछ कमाई होगी. पार्टिसिपेशन फीस, उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन, वो हम लोग ऐड कर लेते हैं. सो द ओपनिंग ऑफ दिस टूर्नामेंट फंड, विच इज द बी पॉइंट, इज 10,700 एंड द सब्सक्रिप्शन इज ऐड, क्योंकि वो कमाई है, इट इज एन इनकम. ओके, लेट्स मी ऐड दैट वेरी क्विकली फॉर यू. द टोटल ऑफ दिस इज 76,500. दैट इज नॉट द आंसर. क्यों आंसर नहीं है? वेल, आप आगे पढ़ो. एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑन कंडक्टिंग द टूर्नामेंट. अभी टूर्नामेंट फंड में पैसे जमा हो रहे हैं तो खर्चा भी होगा. कितना हुआ? 72,400. तो आप माइनस कर लो. चलो माइनस कर लेते हैं, तो बचा हुआ फंड आपको नजर आएगा. यू विल कम टू नो द रिमाइंडर, विच इज गोइंग टू बी 4,100. सो डोनेशन फंड फॉर पेविलियन अलग कहानी, फॉर टूर्नामेंट फंड अलग कहानी, उसका बैलेंस अलग आया. पॉइंट नंबर सी, लेट्स सी क्या दिया है. लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 28,000. द क्वेश्चन इज व्हाट, क्या करेगी, इसका प्रेजेंटेशन क्या करना है. यू सी इन द चैप्टर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस एज वेल एज एनी इनकम, पैसा that is entering in the organization. If it comes only once, एक ही बार आता है, तो उसको कैपिटलाइज करना पड़ता है. कैपिटलाइज का मतलब क्या है? Add it to capital fund. Capital fund is not given.
बट वट एवर इज द कैपिटल फंड उसके अंदर ये लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड होगा, बिकॉज द पर्सन, कहते हैं ना बिल्लियों को 7 या 9 जीवन है, लाइफ्स ऐसे करके बोलते हैं, ओके। इंसान को एक ही, ओनली वन, मरने के बाद में कौन किधर जाता है कोई आइडिया नहीं है। तो व्हेन द लाइफ इज वन, द फीस दैट यू रिसीव फ्रॉम अ मेंबर इज ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, लाइफ मेंबरशिप फीस, क्योंकि वो एक ही बार मिलता है, उसको कैपिटल फंड में ऐड करना ही पड़ता है। तो व्हाट डू आई डू टू लाइफ मेंबरशिप फीस? देखो कैपिटल फंड जो भी होगा, ब्लैंक, हमको नहीं पता, ऐड होगा लाइफ मेंबरशिप फीस। दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस, ओके। देन दैट्स इट, बिकॉज बाकी का जो आंसर है नथिंग हैज कम नेगेटिव। अगर कोई फंड का आंसर नेगेटिव आता है, दैट वी कुड हैव शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द डेबिट साइड एज एन एक्सपेंस। फॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं है। दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कोई बड़ा काम नहीं है, आप लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दीजिए। डिसलाइक करते हो कोई तकलीफ नहीं है, बट उसका एक रीज़न कमेंट बॉक्स में हमको डेफिनेटली बता दीजिए कि सर दिस कैन बी डन बेटर, दिस कैन बी द इम्प्रूवमेंट, दिस कैन बी द सजेशन। येस, कमेंट बॉक्स के दरवाजे खिड़कियाँ खुली है, you can do that. We will graciously accept our mistakes and we will work on the improvements. सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया है दबा दीजिए, एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द चैनल एंड द कंटेंट्स अवेलेबिलिटी आपके दोस्तों तक आप डेफिनेटली स्कूल्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक स्टेटस के द्वारा, इंस्टाग्राम पोस्ट के द्वारा आप दूसरों तक पहुंचा दीजिए। दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड, टिल द टाइम वी मीट अगेन। अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।